काफी काम भी किया, तो ये वाला वीडियो भी देखा होगा आपने, है और एक और दे आर टॉकिंग ओपनली कि हमें 3 दिन का पूरा एंड दे डोंट नो कि दे आर मेकिंग वीडियो। सही है, ठीक है, इसमें दो तीन बात सुन रही तीन दिन के बाद एकदम I know I've survived it. और दूसरी बात वो काम किया है कि पंजाब से एक वो मैंने सुन लिया, वो मुझे सुना हुआ है। What does one make of it? I'll tell you what to make of it. I'll tell you what to make of it. हाँ, मैम एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, 2002 में गुजरात में दंगा हुआ और 2014 के इलेक्शन में मेवात में उसकी चर्चा होती है सलीम बन के धन परिवर्तन करके, वो कितना जायज है? क्या उसका जवाब गुजरात का मुसलमान बनारस में चुनाव प्रचार करके नहीं दे सकता मोदी के लिए? क्या उसको नहीं आना चाहिए? उनको जो फायदा मिला है और उनको लगता है कि हम सेटल्ड हैं, तो क्या बनारस में जाकर वो मोदी के लिए चुनाव प्रचार करें? तो ये जो कथित हिंदू से सलीम बन जाते हैं, एक तो मेरे पिताजी मुझे सलीम कहते थे। मैंने आपके क्वेश्चन में जवाब नहीं दिया। तो गुजरात से दंगा मेवात में सलीम बन कर चर्चा किया जाए तो कितना जाए? ठीक है, आप मेरा क्वेश्चन बेसिकली मैडम आपसे भी है और ऑर्गेनाइजर से ही है। सिर्फ एक ही कारण है कि ये डिबेट्स ऑर्गेनाइज की जाती है, लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि हम लोग यहाँ से कुछ सीख के जाएं। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ग्रुप हमेशा आता है, चाहे रिसर्च में। मेरा सवाल यही है वो आता है और एक फिल्टर लगा के आता है, कुछ बातें उसे सुननी होती है वही सुनता है, बाकी नहीं सुनता है, अपोजिशन करता है। कुछ लोग आते हैं तालियां बजाते हैं। डिबेट करने का मतलब क्या है, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट आकर सिर्फ आप कुछ भी कहें वो वही लेके आएंगे, नॉलेज वही नॉलेज लेके जाएंगे, सिर्फ गालियां देंगे बीच में, बाहर जाके भी गालियां देंगे। व्हाट डज दिस मीन? ठीक है, आप सवाल पूछो। यही सवाल कर रहा है वो, मतलब फालतू का बकवास हो रहा है। I think yesterday you had a little argument with Barka Dutt on Twitter, where you had referred to an interview wherein Modi had indicted her for spreading vicious rumors and canards during a reportage of the riots. My question is, how is it that in India, when journalists like her who have been found to be lobbying for the Congress party earlier are still allowed to peddle lies and sometimes downright lie? And especially jab, I mean, if anything like this had happened in the United Kingdom, like it did in the case of the whole incident, an inquiry was instituted. So, and especially when there is a framework in place under Article 19 of the Constitution itself, why is action not taken against them? And if Narendra Modi ji does come to power, I mean, I think that action should be taken. I'll start with the last one. Yeah, sure. I am neither a Hindu nor a Muslim. So as somebody who is watching it as from the outside, you can say sort of objectively, I feel that the Muslim pain, one needs to be understood, and I don't think one lecture is sufficient, as some of the people out here feel that by one lecture in which the facts are laid out and it will be accepted very easily. I think many such lectures are needed before this sort of thing actually is sinks down into people's, and they realize that actually it is not propaganda, that it is actually not something which is made up. This is data which is beyond Gujarat, which is at a central level, army data which is not tampered with, which is like always maintained very well. So it is that data which is being used, and that data they will have to come to terms with and deal with it one day. I mean, and maybe many such lectures are required. And so at another level, I feel that there are, as an academic community, there are so many traumas going on. This is not the only trauma which is going on. There have been many Muslim riots where the Muslims have suffered. There are many cases where Hindus have suffered, both Muslims and Hindus. I think as academics, we should not bring some sort of a polemical sort of this thing into the picture,
and we should realize the human suffering behind all riots. You know, how the Hindus in Bangladesh are suffering. It's probably the biggest untold tragedy which no academic is ever looking at. I mean, and I as a Sikh, I'm very surprised that the Hindus are not concerned about these things. They're only concerned about, I mean, a very narrow picture somehow which is told to them that look only here and that is what they want to look at, and they decide the conclusions and then build up the research. I mean, the entire research framework out here is that facts can be made up. So, no facts. And you said concept. I don't think they believe in any concepts. They just believe in conclusions. And then they work from there. And so, Rahul Pandita, I don't think he's right wing in any way. You must have heard of Rahul Pandita in Kashmir. And he's written very sensitively about the sufferings which the Hindus have went through out there. And there's no resonance. I mean, I'm very surprised. Not only that, see, it's not politically fashionable to talk of Kashmiri Pandits. You are at once put in the right wing, BJP, Hindutva, fascist. एक कश्मीरी पंडित की दुख दर्द की कहानी कहने का भी अधिकार नहीं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदूज के साथ, वो नाम लेने का अधिकार नहीं। पाकिस्तान में जो एथनिक क्लेंजिंग हुई है, नाम लेने का भी अधिकार नहीं। वहाँ की हुकूमत से जितना इश्क है हमारे लेफ्टिस्ट को, कांग्रेसियों को, काश अपने देश के लोगों से भी उतना होता। आई मीन बीजेपी दुश्मन है, पर पाकिस्तान की हुकूमत बड़ी क्या है। ये जिस दुश्मन भाव से कांग्रेस बीजेपी के साथ डील करती है, I've never seen them being as hostile to Pakistani dictators who have waged wars against India. I mean, I'm not for war against Pakistan. I want to see peace. But I can't understand how you can wage war against a mainstream political party और venom, जहर जितना उगलना उनको सारे दुनिया में fascist। अच्छा, fascism की परिभाषा JNU में भी अगर प्रोफेसर्स को नहीं आती, तो मैं ये कह सकती हूँ काश इनको किसी fascist हुकूमत में जीने का सौभाग्य मिले। Unimaginable what they are doing, you know. This kind of, I've never been anywhere close to BJP. Never in my life have I ever voted BJP except today. But today, I'm telling you, in the last election I voted Kapil Singh. I'm saying it. I've said it. ये कोई नई बात नहीं है, मैं खुद बता रही। पर जितना इन्होंने जहर, जिस तरह फासिस्ट कहते हैं, और मैंने अगर ये किताब लिख दी, जिस किस्म का CSDS में मेरे साथ व्यवहार होता है, मुझे ये भी करने का अधिकार नहीं है। जैसे कोई पाक मैंने दाऊद इब्राहिम का गैंग ज्वाइन कर लिया होता तो मेरी ज़्यादा इज्जत होती है। I have the right to study Gujarat. It's truly appalling the kind of abuse I'm taking from fellow academics. They don't want us to even have the right to say, चलो 24 घंटे गांव में बिजली आती है, वो भी कह दो गुजरात के ट्राइबल गांव में भी 24 घंटे बिजली है, कितनी अच्छी बात है, ये भी कहने का हक छीन लिया। This is truly dangerous because this is neither academic nor social science nor academic. I mean, this is poison and too much. I don't blame the students because यहाँ teachers रोज poison के injection लगाते, रोज लगाते, मेरे भी teacher रहे इनमें से। Now the second point that somebody here raised, just remind me one sentence, Babu Bachchan. Just as Tehelka's first video was the biggest porn job ever, for which as I said, खुदा की मार कभी देशपाल को पड़ी है, इनको भी पड़ेगी। बाबू बजरंगी का इतिहास बताओ, दंगाई है, मोदी सरकार उसको मदद नहीं कर रही थी। जैसा मैंने बोला, आज प्रवीण तोगाड़िया महाराष्ट्र में कांग्रेस की हुकूमत में जाके जहर उगल सकता है। शायद सिद्दीकी ने अपने अखबार में फ्रंट पेज में लिखा था, प्रवीण तोगाड़िया जी, जो जहर आप हैदराबाद में, आंध्रा में कांग्रेस की हुकूमत में उगलते हो या महाराष्ट्र में, जरा गुजरात में जाके उगलो ना,
तो आप साबरमती जेल में चक्की पीसो ही होंगे। किसी जमाने में कांग्रेस की हुकूमत में प्रवीण तोगाड़िया जैसे लोग या ऐसे लोग जब जाते थे पूरा बंद हो जाता था, 1-2 लाख लोग आ जाते थे। आज 2000 लोग नहीं इकट्ठे कर पा रहा ये आदमी, और वहाँ नहीं इनकी हिम्मत, because he has, and this is what I meant, somebody who asked me, he could not, Narendra Modi could not have controlled mischievous elements within the Muslim community, terror gangs, high low, without first controlling the Dangai elements within the Hindu. क्योंकि ये कंट्रोल बहुत सख्ती से उसने किया बाबू बजरंगियों को, तो अब ये स्टीम ऑपरेशन नहीं था मेरे डार्लिंग, ये लेन देन करके, क्योंकि जो एपिसोड वो बोलता है, प्लीज एसआईटी की रिपोर्ट करिए। एसआईटी ने वो हादसा जिसमें बूम से निकाला, एसआईटी ने रिपोर्ट में वो हादसे को एग्जामिन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसा हादसा हुआ ही नहीं, कोई इसका एविडेंस नहीं, कोई ऐसी औरत जिसके साथ ये हुआ हो, डॉक्टर्स ने जो ये रिपोर्ट्स जो दे रही, एसआईटी जब कह चुकी है, एग्जामिनेशन तीसरा सेटलवार्ड की सुपरविजन में ये एसआईटी काम करके इस हादसे को कह चुकी है, ये है ही मनगढ़ंत झूठ। उसके बाद बाबू बजरंगी बैठ जाते हैं कोबरा पोस्ट को ये बकवास करने, क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी मदद नहीं करते और बाबू बजरंगी जैसे कई दंगाई तत्व हर चुनाव में आप गुजरात में जाके देख लीजिए कांग्रेस के साथ प्रचार करते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और ये भी आपको बता दूं, जितने भी अफसर खड़े हुए हैं, श्री कुमार, संजीव भट्ट, ये मानुष वेबसाइट पे पढ़ लीजिए, हीरोज ऑफ द सेक्युलर ब्रिगेड, मेरी ये किताब आई, ये सारे रोब अफसर, सबका क्रिमिनल बैकग्राउंड, एक शरीफ अफसर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि झूठी इतनी मनगढ़ंत एसआईटी रिपोर्ट में एक विटनेस जो तीसरा सेटलवार्ड ने खड़ा किया, एसआईटी ने सबको झूठा सिद्ध किया कि झूठ बोल रहे हैं, इसलिए ये जो कह रहे हैं वो कोई हुआ ही नहीं, ये वहाँ थे ही नहीं, 4 साल बाद ये मनगढ़ंत, ये मैं नहीं कह रही, ये एसआईटी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में कह रही है। और बाबू बजरंगी का उतना ही ये गुप्ता बकवास है जितना स्नूप के। वो लड़की, उसका बाप कह रहे हैं हमें इस प्रदीप शर्मा रोग ऑफिसर से प्रोटेक्शन चाहिए थी, ये कह रहे हैं लड़की के पीछे लगा हुआ। उस लड़की का कन्यादान किया नरेंद्र मोदी ने, इतना वो खतरे में। ये प्रदीप शर्मा का इतिहास देखिए, जेल हो चुका है, इतने स्कैम, इतनी अय्याशी, कितनी औरतों के साथ सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ जो एविडेंस दिया है, शर्म से कोई डूब मरे। अगर सच में जिस किस्म के लोग तीसरा सेटलवार्ड ने खड़े किए, सच में बता दें, इतना पाप, इतना झूठ और इतना पाप, each one of them are proven to be rogue officers. Some of their histories are already on Manushi website. I was already investigated. More will come. Now, the point that who else raised? You said कि ये गुजरात के मुसलमान क्यों नहीं जा रहे? कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। बदकिस्मती ये है कि जो बीजेपी हमारे D4 जिनको बोलते हैं, क्लब 160 जिसको बोलते हैं, ये मैसेज पहुंचाना नहीं चाहते। जैसे मेरी किताब, पहली किताब है जो रिसर्च बेस्ड है, ठीक है, एंटी मोदी किताब कोई आती है तो कितना उसका चर्चा हो जाए। इसी तरह से योगेंद्र यादव जो सलीम बन गया, आपको मालूम है मैं इलेक्शन कमीशन में उसके खिलाफ कंप्लेंट, जो उसका भड़काऊ भाषण है, और मेवात जैसी जगह में जो बहुत संवेदनशील जगह है, जहाँ ऑलरेडी तनाव है, वहाँ कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा हुआ था राजस्थान के मेवात में, गोपालपुरा, वहाँ नहीं गए क्योंकि वहाँ अशोक गहलोत की सरकार है। योगेंद्र यादव यहीं सलीम खान बनते जाते हैं और वहाँ वो पाकिस्तानी पहुँचा, या बाकी इलाकों में जाके यदुवंशी बनते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ सलीम खान बन रहे हैं, हर जगह बन जाए, क्या फर्क है? बाकी जगह यदुवंशी है। जब कॉर्पोरेट इंडिया को डिस्कस करते हैं तो वो फिर कुछ और ही रूप में करते हैं। Now the point is I went and lodged a complaint with the election commission
Yesterday I went and lodged in Mewar police complaint against him because he's playing a very dangerous game. And you know, अमित शाह के ऊपर इतना शोर शराबा हो रहा है, किसी टीवी चैनल ने, किसी अखबार ने कवर नहीं किया मेरी रिपोर्ट. I put it on the website, I have talked about it, not one person is willing to discuss in 1 minute. Coming to Amit Shah, जिसका बयानबाजी पे आपको बहुत दुख हो रहा था, 5-6 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट. नंबर 1, आपको मालूम है अमित शाह 3 बार भारी बहुमत से सरखेज नाम की कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव जीते. सरखेज कंस्टिट्यूएंसी में मैसिव अनप्रेसिडेंटेड मार्जिन 3 बार 30% Muslims हैं. सरखेज में ही जो अब रहा, he always manages to get a significant chunk of Muslims. Go to his constituency and find out from anybody whether has he ever given any vote count to Muslims? Never. Find out, has he ever treated Muslims with any discrimination? No. I have actually examined his track record as an MLA. Nobody can complain against Amit Shah. उसके पीछे क्यों पड़े? Just as नरेंद्र मोदी is exceptionally good as an activist. He is exceptionally good at दंगा मुक्त राजनीति. इसके पीछे जैसे नरेंद्र मोदी के पीछे इसलिए पड़े. दंगे वाले चीफ मिनिस्टर कांग्रेस को बड़े प्यारे लगते हैं. मुलायम सिंह यादव से कितना इश्क है अखिलेश से. बचाएंगे सीबीआई से भी उनको, हर जगह से बचाएंगे. नरेंद्र मोदी दंगा नहीं होने देता, इसलिए कांग्रेस इसी किस्म से अमित शाह, why they against him? उसके पीछे क्यों पड़े? As Home Minister, he went cracking at criminal mafias, crime syndicates and terror networks very effectively. कांग्रेस की राजनीति क्राइम सिंडिकेट्स, टेरर नेटवर्क से इतनी जुड़ गई है, which is why देखो एनकाउंटर किलिंग्स हर स्टेट में सैकड़ों में होते हैं. नीतीश के बिहार में 100 से ज़्यादा हो, यूपी में तो कोई गिनती नहीं, कश्मीर में तो बच्चों को मार दिया. 114 बच्चे कुमार की सरकार ने, इस बात पे किसने पत्थर फेंका था, किसी ने नेवी फेंका था. स्टोन थ्रोइंग का जवाब में 114 बच्चे मारे गए थे 2010 में ना. कहीं कोई इनकाउंटर किलिंग्स की कोई चिंता नहीं. कांग्रेस की हुकूमत में कहीं, बल्कि कांग्रेस की हुकूमत में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को तो कितने गोल्ड मेडल दिए जाते थे, कितने मेरिटोरियस अवार्ड दिए जाते थे, फिल्में में बनती थी. एकाएक 6 एनकाउंटर किलिंग्स ऑफ नोन टेररिस्ट बिकम बिकॉज सेलेब्रिटी. सोहराबुद्दी आज का नहीं, 1990s का टेरर उसका इतिहास है. उसका कितना असला उसके गांव से बरामद हुआ था, कितनी AK-47 1990s. Now the point is, Amit Shah not only manages always to get a good amount of Muslim support, but ये जो शामली में मीटिंग हुई, जहाँ का ये बयान है, आपको मालूम है इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे. आपको मालूम है कि इस मीटिंग में वो दोनों को कह रहा है कि जिन लोगों ने ज्यादती की है हमारे साथ, उन लोगों को ये ज़माना तलवार से बदला लेने का नहीं है, गोली बंदूक से नहीं है, ये ज़माना है वोट देके उनसे. और अगर मुलायम सिंह यादव से मुसलमान या हिंदू जो उनके साथ हुआ है, जिस तरह के दंगे, जिस तरह का फसाद का माहौल, जो इनसिक्योरिटी दोनों में आई है एक दूसरे के प्रति, वोट से बदला नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? गाली गलौज से. क्या करेंगे ऐसे पॉलिटिशियन? ओबामा भी कहता है वोट इज योर बेस्ट रिवेंज. हमें आए दिन सुनने को मिलता है कि आम नागरिक के लिए वोट बहुत अहम हथियार है. अब हथियार है तो ये तो नहीं है कि उसका गला काटते, हथियार है, इट्स अ वेपन एंड इट्स अ वे टू रिवेंज बैड पॉलिटिक्स. उसने बदला कहा या बदलाव कहा, पर हिंदू मुसलमान दोनों को वो कहता. उस मीटिंग में आप ले लीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग. इट्स नॉट जस्ट दे हेट अमित शाह, क्योंकि 3-4 महीने के अंदर उसने यूपी में जहाँ बदहाल थी बीजेपी, राजनाथ सिंह को अगर ये दिया होता काम
तो 5 सीट नहीं आनी थी, उसकी अपनी भी नहीं आनी थी। अमित शाह गुजरात से आके आज सर्वे बता रहे हैं कि 50-55 कितनी भी आ सकती है। यहाँ जब बीजेपी के कुछ बेईमानी भी कर रहे हैं टिकट एलोकेशन, तो उसके बावजूद कैसा माहौल उसने बनाया, कैसा माहौल, एंड बिकॉज ही इज मैनेजिंग टू गेट इवन मुस्लिम्स टू शिफ्ट लॉयल्टी। कांग्रेस की नर्वसनेस नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ बुनियादी यही है कि ये मुस्लिम वोट को भी अपनी तरफ, because of good track record, they are attracting. That's the reason Congress is after Amit Shah, after, just as they were after George Fernandez. So Amit Shah is to Narendra Modi, was George Fernandez was to Atal Bihari Vajpayee. That's the game. Not because Amit Shah is a criminal. And one last thing I want to tell you. There is a PIL in the Supreme Court saying कि जैसे आपने ये 6 एनकाउंटर किलिंग जिसकी वजह से होम मिनिस्टर को तुमने जेल में डाला गुजरात में, एनकाउंटर किलिंग की वजह से होम मिनिस्टर जेल के सबसे ज्यादा तो चिदम्बरम साहब को जाना चाहिए। उनकी हुकूमत में कितने हर चीफ मिनिस्टर को जाना चाहिए, हर होम मिनिस्टर को जाना चाहिए, नहीं जाना। तो PIL में कहा गया कि जैसे 6 गुजरात की आपने दी जो नॉन टेररिस्ट थे, एनकाउंटर फॉल्स थी या जेन्युइन थी कोर्ट बताई, पर टेररिस्ट जेन्युइन थे ये सबको मालूम, वो तो लश्कर ए तौयबा ने भी क्लेम किया। जैसे आप इसको एग्जामिन कर रहे हो, जितनी भी एनकाउंटर किलिंग्स नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास आई हैं, ये कहते हैं कि फॉल्स हैं, इन सबको एग्जामिन किया जाए। आपको मालूम है यूपीए गवर्नमेंट ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में, कहा नहीं नहीं इससे नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। यानी गुजरात के टेररिस्ट भी मरे तो हम मिनिस्टर को जेल में भेजा जाए, और आपके हुकूमत में सैकड़ों हजारों इनोसेंट्स भी मर जाएं और जेन्युइन का कुछ सिर्फ पैरे नहीं, तो वो एक नेशनल सिक्योरिटी का दिस इज द पॉलिटिक्स दैट अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस इज प्लेइंग, एंड आई रियली थिंक इट्स टाइम वी सेड इनफ।